morning to all of you. How are you? Fine. Today we are going to start a new chapter of biology, class 10th. How organisms reproduce. Organism कैसे reproduce होंगे? By the process of reproduction. Reproduction यानी किसी organism का दोबारा से बन जाना. That is known as reproduction. Re means again. प्रोडक्ट होना, अगेन रिप्रोड्यूस हो जाना, डेट इज नोन एज रिप्रोडक्शन. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन. जो ऑर्गेनिज्म पहले से अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उसके जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बन जाता है, that process is known as reproduction. अब ये reproduction क्यों जरूरी है? What is the importance of reproduction? To maintain the life on the earth. The process of reproduction ensures continuity of life on earth. अगर reproduction ना हो तो अर्थ पे क्या होगा? एक लाइफ, एक ऑर्गेनिज्म जो एक टाइम के लिए एग्जिस्ट हुआ है, कुछ टाइम के लिए वो खत्म हो जाएंगे, कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे. बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग अपने पेरेंट्स से एग्जिस्ट हुए हैं, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से, वो अपने पेरेंट्स से, तो एक कॉन्टिन्यूटी चली आ रही है जिससे लाइफ मेंटेन्ड है ऑन द अर्थ. तो दैट इज नॉन एज रिप्रोडक्शन. देयर आर ऑल सो मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है 84 लाख of species present on the earth. 84 lakh species present on the earth. यानी इतने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं. अगर एक ऑर्गेनिज्म ने एक बार जन्म लिया है तो उसका नेक्स्ट रिप्रोडक्शन होता है और उसी के जैसे सेम स्पीसीज बन जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन. तो लाइफ को अर्थ पे मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है. टू सर्वाइव life on the earth, to maintain life on the earth, reproduction is necessary for us. Types of reproduction, it is mainly two types: sexual reproduction and asexual reproduction. There are two main methods of reproduction in living organisms. First one is asexual reproduction. Asexual reproduction, the production of new organism from a single parent without the involvement of sex cells or gametes. Gametes वो organs हैं जिनके यूज से नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होती है. दीज आर द ऑर्गन्स दैट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म नोन एज गैमेट्स. देयर आर फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल सिंगल ही होता है, अलग अलग नहीं होता. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और gametes is called asexual reproduction. There are so many types of asexual reproduction present on the earth, but in your syllabus mainly 5 types of asexual reproduction occur. I will explain that. Second one is the sexual reproduction, the production of new organism from two parents by making use of their sex cells or gametes. It's called sexual reproduction, जिसमें two parents involve होते हैं, like in humans, mother and father. Two parents involved and two gametes are involved, known as sexual reproduction. इसमें single parents involved होंगे, that are known as asexual reproduction. Have you clear to about it? Now I'm going to explain firstly asexual reproduction, how this reproduction occur in so many types of bacteria, plant, etc. But this asexual reproduction not occur inside the human because human is a complex body structure. They need specific organs for their functions. That's why in human body sexual reproduction occur. Have you clear to of it? Now firstly I am going to explain asexual reproduction. I already told you that in a reproduction in a only single parent involved, known as asexual reproduction. Asexual reproduction mainly take place by 5 different methods in your syllabus. Firstly, fission. Fission means टूटना, ब्रेक होना. यानी कोई भी एक सिंगल ऑर्गन किसी भी रीजन से
मैच्योर होकर डिवाइड हो जाएगा, एक्सीडेंटली डिवाइड हो जाएगा, व्हाटएवर। इन द प्रोसेस ऑफ फिजन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, दैट इज नोन एज द फिजन। इन द प्रोसेस ऑफ फिजन द पैरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स और डिवाइड टू फॉर्म टू और मोर देन टू न्यू ऑर्गेनिज्म। किसी भी रीजन से वो स्प्लिट होगा, ब्रेक डाउन होगा, दैट इज नोन एज फिजन। फिजन का मीन्स है टूटना। फिजन मेनली अगर बाय टू टाइप्स। फर्स्ट बाइनरी फिजन, बाय मीन्स टू, फिजन मीन्स टूटना, यानी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का टू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाना, दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन। द पैरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म known as binary fission. For example, amoeba. It is important for 2 marks questions. How can fission occur inside the amoeba? Amoeba क्या है? Irregular in surface, unicellular organism. Only one cell. एक ही सेल है तो एक ही सेल डिवाइड होगी और उसी से न्यू सेल्स बनेंगी, तो डेट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इसके अंदर लिक्विड होता है, डेट इज द साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, ये फ्लूइड वैक्यूल है, ये हमारी पेरेंट सेल है। ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। जब अमीबा ग्रो करेगा तो ये एलेंथन हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। न्यूक्लियस स्टार्ट टू एलेंथन। न्यूक्लियस धीरे धीरे इतना एलेंथन हो जाएगा कि ये जब हम बैलून को खींचते हैं तो लास्ट में क्या होता है, रबड़ को स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो टूट जाती है। सेम लाइक दैट ये न्यूक्लियस एलेंथन होके बीच में से वीक पड़ जाएगा और ये धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। टू न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड। ये बीच वाली सेल्स भी ग्रो कर रही हैं और स्टार्ट टू बिकम द वीक। ये साइटोप्लाज्म धीरे धीरे डिवाइड हो गया एंड देयर आर 2 डॉटर सेल्स। दीज आर द 2 डॉटर अमीबा न्यूक्लियाई, जिन्हें हम 2 अमीबा कहेंगे। तो इस तरह से बाय द एक सिंगल पैरेंट एलेंथन हुआ, ग्रोथ हुआ, डिवाइड हुआ, देन इट विल कन्वर्ट द 2 डॉटर सेल्स, दैट इज नोन एज asexual reproduction. Have you clear 2 of it now? Next one is the multiple fission. Multiple as name indicate, a single organism divide to more than 2 organisms known as multiple fission. Multiple fission, multiple यानी बहुत सारे organism। एक single organism divide हो जाएगा, more than 2 cells known as multiple fission. The parent organism splits or divide to form many new organisms at the same time, known as multiple fission. यानी एक ही टाइम पे एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स में डिवाइड होगा, दैट इज द मल्टीपल फिजन। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ मॉस्किटो, दैट इज द मॉस्किटो। वो एक ही टाइम में थाउजेंड्स ऑफ सेल्स ब्रीड हो जाती हैं, तभी इतने ज्यादा मच्छर एकदम से आ जाते हैं और वो कभी खत्म नहीं होते। दैट इज अ प्लाज्मोडियम सेल्स। ये अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये आउटर कवरिंग है टू प्रोटेक्ट दैट इज अ सिस्ट। सिस्ट इज अ प्रोटेक्टिव वॉल। धीरे धीरे स्टार्ट करेगा ग्रो करना, एक सिंगल सेल डिवाइड हो जाएगी बहुत सारी सेल्स में, दैट आर नॉन एज डॉटर सेल्स। ये प्रोड्यूस होगी, ग्रो करेगा। जब कोई चीज एलेंथन फैलती है तो उसकी बाहर की सेल वीक हो जाएगी। ये धीरे धीरे जो आउटर कवर है, सिस्ट है, दैट विल बी ब्रेक, रप्चर। ये ब्रेक हो जाएगी। जितनी भी डॉटर सेल्स हैं वो फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेंगी। क्या है फेवरेबल कंडीशन? मॉस्किटोज के लिए कहीं पे पानी इकट्ठा होना चाहिए और रेनी सीजन। आजकल रेनी सीजन है, रेनी सीजन में मॉस्किटोज की ब्रीड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आउटर सरफेस रप्चर हो जाएगी, डॉटर सेल रिलीज हो जाएंगी, गेट द फेवरेबल कंडीशन एंड गेट द ग्रो, दैट इज अ मल्टीपल फिजन। तो एक सेल से बहुत सारे सेल्स का बन जाना कहलाएगा मल्टीपल फिजन। तो फिजन मेनली 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन। बाइनरी मीन्स 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, मल्टीपल्स मीन्स मोर देन 2 सेल्स में डिवाइड हुआ। मोर देन 2 होती है वो क्या हो जाएगा? मल्टीपल फिजन। हैव यू क्लियर 2 ऑफ इट नाउ? नेक्स्ट वन इज द बडिंग। बडिंग आप लोगों ने बर्ड देखा होगा, अनडेवलप्ड फ्लावर का जो पार्ट है जिससे फ्लावर डेवलप होता है, दैट इज अ बड। सेम लाइक दैट कुछ ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेल्युलर जो एक सेल का यूज कर रहे हैं,
उनमें अनडेवलप्ड पार्ट आ जाएगा, वो धीरे धीरे डेवलप्ड होगा एंड दैट विल बी चेंज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म in budding. A small part of the body of the parent organism grows out as a bud. Bud is undeveloped part which then detach and become a new organism. For example, ये हाइड्रा है, हाइड्रा ये पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल में ये अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, छोटा सा अनडेवलप्ड पार्ट ये आ गया, दैट इज अ बड. ये बड धीरे धीरे फेवरेबल कंडीशन इसको मिलेगी एंड स्टार्ट टू ग्रो. ये ग्रो होना स्टार्ट हो गया. जैसे ही ग्रो होगा इट विल बी चेंज इनटू न्यू हाइड्रा. जब ये ग्रो लेंथन हो जाएगा, यहाँ से वीक हो जाएगा और यहाँ से कट डाउन हो जाएगा. जब ये टू पार्ट्स में कट हो गया इट मींस बाइनरी फिजन. अगर ज़्यादा में होगा दैट इज अ मल्टीपल फिजन. तो ये न्यू हाइड्रा बन गया है, दैट इज अ डॉटर सेल. तो एक पेरेंट सेल से न्यू सेल का बनना इज अ reproduction or sexual reproduction and by the process of budding. Same like that in yeast. क्या है yeast? Yeast it is a bacteria that is used for the fermentation. जो fermentation में use होता है, अल्कोहल बनाया जाता है, that are the yeast. ये एक yeast बैक्टीरिया है. इसमें एक छोटी सी बर्ड डेवलप हो जाएगी, ये ग्रोथ करेगी, एक और बर्ड बनेगी. अगर एक बर्ड बनी है तो दो न्यू yeast cells बनेंगी, that is a binary. और अगर बहुत सारे बर्ड्स बन जाएं तो ये क्या होगा, मल्टीपल फिजन, लॉन्ग चेन ऑफ यीस्ट. तो देयर आर बाइनरी, ये मल्टीपल फिजन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक साथ बहुत सारे बर्ड्स बन गई हैं तो मल्टीपल बर्डिंग के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म बहुत सारे बन जाएंगे. ओनली वन और टू बर्ड्स बनी है तो टू ऑर्गेनिज्म बनेंगे, दैट इज अ बर्डिंग.